یہ بسم اللہ 5 صورتوں کے کچھ کمالات جو حیرت انگیز طور پر پہلے بھی کئی بار بتائے، آج کوئی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ مختصر بات کروں گا، تھکان ہے، مسلسل رمضان، پھر حویلی صورت کوثر کا چلہ، پھر سفر سفر سفر۔ اللہ 6 بسم اللہ، بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو عذاب دیں گے، جن کو عذاب پہ مقرر کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے والا جہنم کے عذاب دینے والے فرشتوں سے محفوظ رہے گا، اور جہنم وہ کائنات کا طاقتور نظام ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نہ طاقت چلے گی نہ قوت چلے گی، کوئی نظام ایسا نہیں چلے گا کہ انسان بچ سکے، صرف اللہ ہی اللہ۔ جو بسم اللہ جہنم کی ایسی آگ سے جس سے کوئی نہ بچ سکے بچا دے، وہ بسم اللہ دنیا کی آگ سے نہیں بچا سکتے، وہ قرضوں کی، وہ بیماریوں کی، وہ دکھوں کی، وہ جہنم کی، وہ حسد کی آگ، وہ کینے کی آگ، وہ بغض کی آگ، وہ جادو کی آگ، وہ کالے جنات کی آگ جو آگ سے بنے ہیں، وہ غصے کی آگ، وہ کینے اور بغض کی آگ۔ سوچنے کی بات کہ وہ بسم اللہ کیسے نہ بچائے گی۔ ہماری سمتیں 6 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور 6 بسم اللہ ہیں اس میں۔ مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا، سواری، کھانا، ساتھی، دوست، خدام، ہر چیز موجود تھی، سفر میں سب سے زیادہ مشکل میں تھا، تکلیف میں میں تھا، اور سفر میں زیادہ میں الجھن میں تھا۔ یا رسول اللہ کوئی نگاہ فرمائے، دعا فرمائے۔ رسول اللہ کرم دی ہے کہ نگاہ فرماؤ، سارے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب تو سفر میں جایا کر تو یہ دعا پڑھا کر، 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ بسم اللہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون کی صورت، بسم اللہ کے ساتھ اذا جاء کی صورت، اس میں سے تبت یدا چھوڑ دینی ہے، بسم اللہ کے ساتھ قل ھو اللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورت فلق، بسم اللہ کے ساتھ سورت الناس، اور آخر میں بسم اللہ۔ یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں۔ تو ہماری سمتیں 6 ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں وہ کنڈکٹر تھا، میں نے کہا کہ بسوں کے حادثات کے واقعات سنا۔ اس نے کہا جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آگے بیٹھیں گے، ڈرائیور بچے گا تو ہم بچ جائیں گے، آگے حادثے ہوئے، کل پیچھے گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے، ان کا سوچ ہے کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے، بس گاڑی کوچ ہمیشہ آگے سے لگتی ہے تو پیچھے سے بھی لگ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں درمیان میں بیٹھیں گے، کہا کوئی ایسا ہوا نظام کے درمیان سے آگے کسی نے ٹکر مار دی۔ ہر سمت سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ بلائیں آفتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب کرونا آیا تھا نظر نہیں آیا تھا، ماسک بھی پہن لیے، اور بعض لوگوں نے خلائی مخلوق کا لباس پہنا، یہاں شیشے، ایک خاص ہیلمٹ ٹائپ، نظر تو کچھ نہیں آیا تھا۔ سائنس نے کہا تھا کرونا ہے، نظر تو نہیں آیا تھا۔ عذاب نظر نہیں آتا، بلا نظر نہیں آتی، وبا نظر نہیں آتی۔ میری قسمت میں آنے والے وقت میں ان قریب کیا ہونے والا ہے نظر نہیں آتا۔
हादसात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, कल क्या होगा, माजा तकसिब गदन। कुरान कहता है कल क्या होगा तुझे पता नहीं है। आज तेरे घर में शादियां हैं, आज तेरे घर में खुशियां हैं, आज तेरे दिल में खुशियां हैं, कल क्या होगा। ये आने वाले वक्त को ये अल्लाह का नाम बचाएगा, आने वाले वक्त को ये अल्लाह का नाम हिफाजत देगा, महफूज करेगा। आने वाले वक्त को, आने वाला वक्त क्या है। 6 सिमतें हैं, ऊपर से बिजलियां करके बारिशें हो। किसी ने कहा था हम तो पहाड़ों पे बैठे हैं, सैलाब हमें कुछ क्या करेगा। रब ने पहाड़ों से सैलाब भेज दिया, बादलों में सैलाब भेज दिया। उसने कहा जी बादल फट पड़े, क्लाउड बस्ट हो गया और बादल फटे और एक तूफान आया जो घरों को भी और इंसानों को भी और जिंदगियों को बहा के ले गया। ये 2025 का जो सैलाब आया, पहाड़ों में बैठे बंदे पे सैलाब कैसे आ सकता है। सैलाब तो मैदानों में आएगा, सैलाब तो ऐसी जगह आएगा जहां पानी का बहाव है। अल्लाह कहते हैं मैं ऐसा करके दिखा सकता हूं, ये तुम्हारे लिए निशानियां हैं, ये तुम्हारे लिए निशानी है, मैं ऐसा करके दिखा सकता हूं। आसमानों से बादल फटे और पानी ऐसा आया, इतना आया, इतना आया, कुछ ना बचा। पल के अंदर, सिर्फ पल के अंदर, सिर्फ पल के अंदर जो रईस थे वो फकीर हो गए, जो फकीर थे वो मुफलिस हो गए, जो मुफलिस थे वो मंगते हो गए। पल के अंदर कहने लगे 6.5 सेकंड का जलजला था, बस सिर्फ 6.5 सेकंड, 6.5 सेकंड का जलजला था, 6.5 सेकंड का जलजला था। और 6.5 सेकंड के जलजले ने सब कुछ खत्म कर दिया। 6 सिम्मतें हैं जहां से अजाब आ सकता है, बला आ सकती है, वबा आ सकती है, कहत मर्ज आ सकता है, दुश्मन का वार हो सकता है। वो 6 सिम्मतें हैं, 6 सिम्मतें, आसमान जमीन और 4 सिम्मतें, दाएं बाएं आगे पीछे, 4 सिम्मत। ये चीजें आ सकती हैं और आई हैं और आती हैं, और हमारी आंखों ने देखा है कि ऐसा होता है, हमारी आंखों ने देखा है कि ऐसा होता है। ये जो 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें हैं, ये 6 बिस्मिल्लाह इन 6 सिम्मतों के अजाब, बला और परेशानी और मुश्किल और मसाइल को बहुत ज्यादा रोकते हैं। इन 6 सिम्मतों को बहुत ज्यादा रोकते हैं, इन 6 सिम्मतों को। फिर हमारे साथ 4 सूरतें हैं, 5वीं सूरत है आपने कभी सोचा, शायद मैं गलत बता गया। 6 बिस्मिल्लाह कितनी सूरतें, ठीक बता, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। ये 5 सूरतें क्यों हैं। आज तक आपने, मैंने एक लफ्ज सुना, चारे कुल, चारे कुल। ये जो कुल या युल काफिरून है ना, ये भी चारे कुल का हिस्सा। कुल वल्लाह चारे कुल का हिस्सा, सूरत फलक चारे कुल का हिस्सा, सूरत नास चारे कुल का हिस्सा। इसमें एक है सूरत इजाजा नसरुल्लाह, सूरत नसर। ये वो सूरत है जिसमें फतह, कामयाबी की खुशखबरी है। आप देखें, इजाजा नसरुल्लाह वल फतह, तुम्हें नुसरत दी जाएगी, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हें फतह दी जाएगी। वल फतह वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फिर हम जब फतह देंगे
اور تمہاری مدد کریں گے. نصرت کہتے ہیں مدد کو, مدد کریں گے. پھر روحانیت کی دنیا میں اور روحانیت کے حلقے میں اور روحانیت کے نظام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گے. افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. خیال کرنا جب دیکھنا روحانیت کی فوجوں کی فوجیں, لوگ فتح در فتح آ رہے اور بہت زیادہ تیری طرف متوجہ ہو رہے, تو فسبح, پھر اللہ کے سامنے جھک جا, بک واستغفر, استغفار کر, اللہ یہ میری وجہ سے نہیں, محض تیرا کرم ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ, فرق ہے, فرق ہے, فرق. استغفار کہتے ہیں معاف کر دے, جو کیا معاف کر دے, تیری مہربانی, تیرا کرم اور تیرا فضل. استغفار یہ ہے, اور توبہ یہ ہے آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ کے لیے بھی میں نے خطاؤں اور نافرمانی کے دروازے بند کر دیے, تو میری مدد فرما. فی دین اللہ افواج, اس میں ساری کی ساری کامیابیاں اللہ نے رکھی ہیں. مقاصد میں کامیابیاں, رزق میں کامیابیاں, سفر میں کامیابیاں, صحت میں کامیابیاں, عزت میں کامیابیاں, برکت میں کامیابیاں, اولاد میں کامیابیاں, اولاد کی اولاد میں کامیابیاں. وہ کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو, صحت کی شکل میں, بخت کی شکل میں, تخت کی شکل میں, روحانیت کی شکل میں, روح کی شکل میں, کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو, کامیابیوں کا کوئی بھی نظام ہو, کوئی بھی نظام, یہ سب کامیابیاں, یہ سب کامیابیاں, کوئی بھی کامیابیوں کا نظام ہو. اس صورت کے اندر کامیابیاں ہیں. یہ صورت کا میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں, جو جس نے کیا اور جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا, جس نے کیا جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا, رب نے اس کو عزت, دولت, رزق, صحت, برکت, وسیع خزانے دیے. فجر کے بعد 21 بار, مغرب کے بعد 22 بار, فجر کے ظہر کے بعد 22 بار, عصر کے بعد 23, مغرب کے بعد 24 اور عشاء کے بعد 25. اس تعداد میں پڑھتا جائے, اور یہ تعداد مستند کتابوں میں موجود ہے, ثبوت ہیں. یہ 5 صورتیں, یہ 5 صورتیں, ہر صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, انکار کرنے والوں, روحانیت کا انکار کرنے والوں, رب کے وجود کا, کملی والے کی نبوت کا, خلافت کا, ولایت کا, روح کا, روحانیت کا انکار کرنے والوں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ہم نہ تمہاری مانے نہ ہم تمہاری اتباع کریں. اور آخری ہے لکم دینکم ولی دین, تو جان تیرا نظام جانے, ہمیں تو اپنے نظام پہ محبت ہے, ہمیں روحانیت تسبیح خانے سے روکنے والوں ہم نہیں رکیں گے, ہم لڑیں گے بھی نہیں, مقابلہ بھی نہیں کریں گے, پر ہم اگر تسبیح خانے کے ساتھ, عبقری کے ساتھ ہماری نسبت ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس نسبت سے ہمیں ہٹا نہیں سکتے. لکم دینکم ولی دین, تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خود ہی پسند, مجھے خدا پسند. لکم دینکم ولی دین, بس لکم دینکم ولی دین. اس صورت کے اندر طاقت اور قوت ہے, اور پورا کا پورا ایک چیلنج ہے, اور چیلنج کرنے والا بندہ نہیں, رب ہے خود, اور جس نے چیلنج کیا ہے وہ نمٹتا خود ہے. تکلیف دینے والی قوتیں وہ کسی بھی شکل میں, وہ جادو, وہ جنات, وہ بدرو ہیں, وہ کھانے میں زہر ہے,
वो दुश्मन की तदबीरें हैं और वार है, और दुश्मन का अनोखा निजाम है कि जो हमारी अकल समझ शऊर में समझ नहीं आता। इन सारी तदबीरों को चैलेंज है, खुद इन सारी तदबीरों को, उनके सारे मंसूबों को चैलेंज है, अल्लाह का चैलेंज। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून। नहीं मानेंगे, वो कह रहे मान जा, कर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। मुझे रूहानियत की, मुझे तस्बीहानी की दुनिया से ना हटा, मुगालतों में ना डाल, वसवसों बदगुमानियों में ना डाल, मैं नहीं मानूंगा। जब उसने मजबूर किया ना, तो इसने आखिर में कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जा तू जान तेरा दीन जाने, तू जान तेरा राहें जाने, तू जान तेरी दलीलें जाने, तू जान तेरे सबूत जाने, तू जान तेरी जिंदगी जाने। मेरे सामने एक जिंदगी है, वो है रूह की जिंदगी, रूहानियत की जिंदगी, तस्बीह और तस्बीह खाने की जिंदगी। बस मेरे सामने ये जिंदगी, इसके अलावा मेरे पास कोई जिंदगी नहीं है, और मैं इसी जिंदगी से मौत तक इंशाअल्लाह जुड़ा रहूंगा। फिर एक और बात है, शहर होता था दरवाजों के अंदर। जितना भी मदीना मुनव्वरा का शहर था, इस वक्त वो सारी मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी जितनी बड़ी है और इसका अहाता जितना है, ये सारा मदीना का शहर था, ये सब मदीना का शहर मदीना था। इस शहर से बाहर निकलने के लिए फरमाया जब तुम सफर में जाओ, सफर में जाओ तो फिर ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ लेना। इसकी कोई तादाद नहीं बताई, वो एक बार है या 100 बार है, वो एक बार है या 300 बार है, वो एक बार है या सैकड़ों या हजारों है, तादाद नहीं बताई। शहर से बाहर, लाहौर शहर आज भी, उसके दरवाजे आज भी मौजूद हैं। लाहौर शहर वो भी मौजूद है, उसके दरवाजे भी मौजूद हैं, वो मौजूद है, आज भी है। शहर से बाहर जब तुम निकल, वो सफर है किसी भी शक्ल का। अब इस सफर में एक वजाहत ये नहीं है कि वो शहर से बाहर सफर में निकलेगा, हदीस में ये वजाहत नहीं है। बस सरकार मदीना ने फरमाया वो सफर में गया, और सफर में जाते ही उसकी हालात में मुश्किलात आई। इस वक्त शहर वसी हो गए हैं, जो जंगल थे वो शहर का हिस्सा, जो दूसरे शहर थे वो भी उसी शहर का हिस्सा बन गए। छोटे छोटे शहरों को बड़े शहरों ने हजम कर दिया, सोसाइटियों की शक्ल में, वसी शहर फैलने की शक्ल में, सड़कों और शहरों की शक्ल में। छोटे छोटे गांव तो वैसे पता ही ना चला, बड़े शहर उसको हजम कर गए, बड़े शहरों ने उसको हजम कर दिया, बड़े शहरों। बड़े शहरों ने उसको हजम कर दिया। अब मैं इन 5 सूरतों की एक चीज बताता। एक जाहिरी है, एक जहरी निजाम है। मेरी हमशीरा साहबा के ससुर थे, फौत हो गए, वालिद साहब के सगे कजन थे, तो वो कहने लगे कि हमने बेहतरीन खुद से ये तिल्ले के बने हुए खूबसूरत बड़े कीमती नफीस हल्के, ऐसे कोई हाथ लगाए तो हैरान हो जाए, वो सिलवाए बेहतरीन कपड़े निजाम। उसने कहा कि हम जाके दिल्ली देखाते हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी पुरानी चीजें हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां सो रही हैं। तो कहने लगे हम दिल्ली में गए तो एक साहब ने देखा, कहने लगा बहुत अच्छे घराने के लोग लगते हो, कहां से आए? उसने हम रियासत से आए। ओ वो तो बहुत अच्छे, देखो ख्याल करना यहां ठग होंगे और तुम्हारी जेब तराशी हो सकती है, तुम्हारा कोई चीज छीन सकती है। उसने बहुत ज्यादा खुलूस और सच्चे जज्बे से हमें समझाया और कहा अपनी चीजों की एक एक की हिफाजत करना। जूते हैं अच्छे बने हुए हैं,
तुम्हारे पास कीमती रेशम के रुमाल हैं, ये अच्छे बने हुए। कहने लगे सबसे अच्छा रुमाल मेरा था। उसने कहा ये रुमाल दिखा, रुमाल बिछाइए, सारे जूते उतारो, इस रुमाल पे रखो। उसने कहा बंदा क्या करेगा? रुमाल ऐसे इकट्ठा करेगा, उसको बांधेगा और ऐसे दौड़ पड़ेगा, और दौड़ गया। ऐसे बांधेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा। बहुत एहतियात कर, दौड़ गया, हम देखते रह गए नंगे पांव। जगह जगह पे सारी दुनिया। एक दौर था कि पीले रुमाल का एक उरूज था। ठग होते थे, वो बंदे को घेर लेते थे बातों में, प्यार की बातों में। 2-3-4 बंदे होते थे। एक बंदा पीछे से उसके गले में रुमाल बांध के ऐसे खींचता था, वहीं उसको फांसी मिल जाती थी। वो गिर पड़ता था, उसको मार के उसकी सारी चीजें ले लेते थे। पीला रुमाल होता था उनके पास, रेशमी खास किस्म का। ये ठग नजर आते हैं, नजर आते हैं, लेकिन हमें कुछ और भी है लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, हमारी नस्लों को, हमारे खून पीने वाले, हमारा गोश्त खाने वाले, हमारी आंखों से बिनाई छीनने वाले, हमारे शऊर से अकल छीनने वाले, हमारी जिंदगी से नस्लें छीनने वाले, हमारी खोख से औलाद छीनने वाले। अनदेखी काली ताकतें हैं, अनदेखी काली कुव्वतें हैं, अनदेखा काला निजाम है। तो हमारी जिंदगी से सब कुछ छीनने वाली अनदेखी काली ताकतें, काली कुव्वतें, जो गली चौराहों में हर जगह, सिर्फ बैतुल खला में नहीं, मौजूद है। हर जगह मौजूद है, गली चौराहों में हर जगह मौजूद है, और हमें डस रही हैं, डस चुकी हैं, डसेंगी। हमारा पैसा निकालेंगी, हमारा खून खत्म करेंगी, हमारा गोश्त खत्म करेंगी, हमारी नस्लों से औलादें छीनेंगी, बे औलादियां, और हमारी नस्लों को नजर बद लगा के उनके रिश्ते बांध देंगे, उनकी औलादें बांध देंगे। ये काली चीजें, ये काले लोग, ये काले रोग हमारी नस्लों से सब कुछ छीन लेंगे। वो नजर नहीं आते। मैं फिर कहूंगा, कोरोना नजर आया था, ठीक। उस दिन एक बंदे ने ना अभी हवेली में, मैंने कहा क्या पास पहना हुआ तूने? कहने लगे जब मुझे फ्लो नजला है। मैं क्या उतार दे। वो कहता है कि मेरे जरासीम हैं। अच्छा, वो फ्लो नजला नहीं था, वो धूल उड़ी हुई थी। उसने जेब से मास्क निकाला, पहन लिया, ताकि लोग मुझे देखें। यह भी एक जिंदगी होती है, ये भी एक जिंदगी होती है। रहूं सबसे बाला हो शौकत निराली। किसी ने जरासीम तो नहीं देखे ना। अनदेखे जरासीम पे इतना यकीन। और ये जो लूटने वाले जरासीम हैं, जो हमारी नस्लों और हमारी गोश्त और खून, हमारी बिनाइयां खा जाए, हमारे जिगर को खा जाए, हमारे मेदे और दिल को खा जाए, और फिर तरह तरह की बीमारियां। और मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा मफहूम है, नजर बद से जाएगा कब्रों के अंदर। और वो नजर बद सिर्फ इंसानों की नहीं, वो नजर बद सिर्फ इंसानों की नहीं, वो नजर बद जो है, वो नजर बद जिन्नात की नजर बद है, जिन्नात की नजर बद। इंसानों की भी, जिन्नात की नजर बद नजर नहीं आती, वो नजर ही नहीं आती। एक साहब मेरे पास आते थे, 25-26 साल के जवान थे। वो कहते हैं मेरा रिश्ता करीब आके टूट जाता है, और जब रिश्ता आता है तो रात को जिन्नी आती है, क्या है, मैंने तुझे पसंद किया है, आते जाते रहेंगे, मैं इनका रिश्ता नहीं होने दूंगी। रिश्ता तय हो जाता था, मैं खुश होता था, आखिरी वक्त में इनकार हो जाता था। मुझे कहने लगा कुछ 30 से ज्यादा रिश्ते मेरे टूटे हैं। खूबसूरत जवान था, सिफात वाला था। मैंने बहुत कम लोग ऐसे खूबसूरत देखे हैं। कहा कि वो जिन्नी है।
तो मैंने कहा उससे पूछ, मैं तुझे अच्छा कैसे लगा, तेरी नजरों में कैसे आया? उसने कहा तो उस वक्त 18-19 साल का था, तो बेहतरीन बन सवर के कहीं किसी तकरीब में जा रहा था। मैं रास्ते में खड़ी थी अपनी हमजोलियों के साथ, यानी और जिन्नाती लड़कियों के साथ। हम सब अपने किसी दोस्त की तलाश में थे। तुझे देखा तो सब ने कहा ये मेरा है। मैंने कहा मेरा है। मैंने पहले ही जाके तुझे कब्जा कर लिया, तुझ पे, और तुझे लपेट लिया, जपा पा लिया। तुझे मैंने अपने अंदर लपेट लिया। सब चली गई, सब ने अपना अगला शिकार ढूंढा। उस दिन से तो मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती तेरी जिंदगी में कोई और औरत आए। मैं सारी जिंदगी तेरी शादी नहीं होने दूंगी। पर ये मेरे पास एक केस नहीं है। मेरी जिंदगी का एक बहुत सारा हिस्सा इन्हीं मसाइल को सुनते 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 गुजर गया। क्या ख्याल है? कहीं कहीं आप देखें कोई लूटने वाले खड़े हैं तो रास्ता, एक साहब कहने लगे मैं आ रहा था तो गाड़ी में उल्टी साइड में एक बंदा गाड़ी रोक के कहता था वापस चलो, आगे डाकू डाका डाल रहे हैं। हर गाड़ी मुड़ रही थी, मुड़ रही थी। वो डाका डालने वाले डाकू नजर आए, ये डाका डालने वाले डाकू नजर न आए। एक साहब है, हंसते मुस्कुराता चेहरा है, खूबसूरत खूबसूरत है, चेहरा भी खूबसूरत है, दांत भी खूबसूरत है, हर चीज की बनावट में हुस्न है। हंसते हैं, उनको नजर खा जाती है। मैंने कई दफा उनसे कहा, फिर वो इलाज करते हैं 2-4 दिन, फिर उसके बाद वो मौज मेले में होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कि ये इलाज मुकम्मल किया जाता है। तो ये चीजें हमारी जिंदगी में हमें नजर नहीं आती। ये जो सूरतें हैं ना, 5 सूरतें, 6 बिस्मिल्लाह, ये हमारी इन चीजों से हिफाजत करती हैं जो नजर न आने वाली है। अभी हवेली में सूरत कौसर का चिल्ला था, तो सहरा का एक बंदा आया था, उसके दोनों बाजू नहीं थे। जब पहली दफा कई साल पहले मुझे मिला, अब तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये क्या है? कहने लगा जब 1971 की जंग हुई थी तो यहां दूसरे मुल्क ने बारूदी सुरंगें बिठाई थी। जंग खत्म हो गई कई सालों के बाद, हमने रेत के अंदर देखा तो एक छोटी सी डब्बी थी, हम उससे खेल रहे थे, अचानक फटी और मेरे दोनों बाजू उड़ गए। उसके दोनों बाजू कटे हुए हैं, कोहनियां भी नहीं है, ऊपर तक कटे हुए। वो डब्बी तो नजर आई, पर डब्बी के अंदर पता नहीं था कि था क्या। तो बारूदी सुरंग थी। हमें हर चौराहे में, हमें हर रास्ते में लूटने वाले, रिस्क लूटने वाले, हमारी सेहत लूटने वाले। फिर एक और चीज आजकल उसकी लूट पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी सेल है उसकी आजकल। वो है सुकून लूटने वाले, चैन लूटने वाले, राहत लूटने वाले, नींद लूटने वाले, मुस्कुराहट लूटने वाले। ये इस वक्त बहुत ज्यादा है, इसकी हद से ज्यादा है। ये चीज भी इन्हीं चीजों का करिश्मा है। वो सिर्फ बैतुल खला नहीं, वो हमारी गली चौराहों में। मेरे सरकार ने फरमाया मगरिब के बाद बच्चों को बाहर ना निकालो। मेडिकल साइंस इस बात पे आ चुकी है, मेडिकल साइंस इस बात पे आ चुकी है कि मगरिब के बाद बच्चों को ना निकालो। क्या होता है मगरिब के बाद? क्या होता है? अंधेरा होता है, फिर लाइटें जला देते हैं, और क्या होता है? नहीं, एक गौल के गौल, काली एक जिन्नात के, खतरनाक जिन्नात के काफले के काफले, लश्कर के लश्कर निकलते हैं, लश्कर के लश्कर निकलते, काफले के काफले, काफले के काफले। और बंदों को टच लेते हैं, खा लेते हैं, उनका दिमाग छीनते हैं। सबसे पहले दिमाग के अंदर का और दिल के अंदर का चैन छीन लेते हैं। नुकसान क्या होता है?
मैं आपको फोन करता रहा, कहने लगा फोन साइलेंट पे था। मैंने कहा मैंने आपकी बेगम को फोन किया, लगा वो तो गोलियां खा के सोती है, वो तो दिन के 2:30-3 बजे उठती है। अब तो उस पर गोलियों का असर भी कम हो गया, गोलियों का असर भी कम हो, अब तो उसमें गोलियों की तासीर भी खत्म हो गई, गोलियां खा के। ये काली चीजें अंदर का सुकून छीनती, अंदर की राहत छीनती। सब कुछ है, चैन नहीं, सब कुछ नहीं, चैन नहीं। औलाद है, सुकून नहीं, औलाद नहीं, सुकून नहीं। माल है, सुकून नहीं, माल नहीं, सुकून नहीं। ये सब कुछ ऐसे छीनती। मैं मिस्र में गया ना, मैंने मिस्र में बहुत सफर किया, लंबे सफर किए, कोने कोने में जाने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा फिरौनी निजाम हजारों साल पूरा है, मैं पूरा ना फिर सका, बहुत फिरा। मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने ऐसे महसूस किया कि जिन्नात काली दुनिया के लश्कर है, जैसे बंदे के ना वो जोर से थूक फेंके और पीछे जो है थूक के पीछे, हाँ बल्कि आसान आपको मिसाल आ गई, चलती बस में थूक फेंके तो थूक बिखर जाता है। बाजों का, मैं एक दफा कॉलेज से आ रहा था तो एक बंदे को उल्टी जो आई, पीछे वाली सारी सीटें उल्टी से भरी गई। क्यों? चलती बस में उसने उल्टी की, और वो उल्टी जो बिखरी उसने आखिर तक हर बंदे के कपड़े और चेहरे पे उल्टी फिर उल्टी थी। ऐसी उसने थूक फेंकी, और ऐसे थूक फेंकी, हर बंदे पे फेंक रहा था। मैं था, मेरी बेगम थी, बच्चे थे, हम पे थूक फेंकी। तो मैंने ऐसे कहा, मा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्वियातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। उसकी थूक ऐसे लिपटी और उसकी आग इर्द गिर्द लिपट गई जो उसको आग लगी। अल्लाह के हबीब खाना खा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आए खाना खा रहे थे, एक बच्चा आया, खाने में शामिल हुआ, अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो शैतान खड़ा था वो भी शामिल हो गया। एक रिवायत में है कि एक बंदा आया, शामिल हो गया, उसको बाद में याद आया, उसने खाने के दरमियान अल्लाह का नाम लिया, बस अल्लाह का नाम लेते ही शैतान को ऐसी उल्टी और कह आई, आंखें भी बाहर निकल आई। हुजूर मुस्कुरा दी, यार सुनो आप खैरियत है, कोई ऐसा मंजर तो नजर नहीं आ रहा, मुस्कुरा दे। तो आपने फरमाया, मैंने आंखों से देखा, नबूवत की सच्ची आंखें, तारे की आंखें सच्ची नहीं हो सकती, तारे की आंखें धोखा खा सकती हैं या मैं आपको धोखा दे सकता हूं। नबूवत की सच्ची आंखों ने देखा कि जब इसने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, तो अल्लाह का नाम लेते ही उसको उल्टी आई, उसने सब कुछ बाहर निकाल। यह अनदेखे निजाम, अनदेखी दुनिया। मैंने कई दफा कई जगह वहां फिरौनों के वहां गया और वहां के काले जादू देखे और वहां की काली दुनिया देखी और वहां के काले लोग देखे, काली चीज। और मैंने वहां देखा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरत। ओहो, अब मैं एक जगह आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी तेजी से, सड़क महफूज है, बेहतरीन है, आगे पत्थर का एक पहाड़ सड़क पे किसी ने चुन के लगाया है, और शुक्र है आपकी रफ्तार में आपको नजर आ गया कि पत्थर पड़े हैं, तो आप पत्थरों से टकराएंगे या गाड़ी रोकेंगे? रोकेंगे, टकराएंगे। ऐसे रास्ते बंद कर देते थे। वो रास्ते पत्थरों के नहीं होते थे, पत्थरनुमा बलाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, बीमारियां, वबाल, और वो उनके अंदर से लोग गुजर के जा रहे हैं। दूर से देखा, मुसीबतों का पहाड़ है, दुखों का पहाड़ है, उलझनों का पहाड़ है, टेंशन का पहाड़ है, मसाइल और मसाइब का पहाड़ है, जो कर्जों, बीमारियों, दुखों, दिल के चैन को लूट और जिंदगी के सुकून को लूट लेगा। वहां 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, एकदम ऐसे हटा
जैसे बंदा जाए तो खुदकार दरवाजे खुलते हैं, जिसको ऑटोमेटिक कहते हैं। खुदकार दरवाजे यूं जाए यूं खुलते हैं। बात जगह जाए खुद ब खुद लाइटें जल जाती हैं, आप हट जाए लाइटें बंद हो जाती हैं, ऐसे खुद ब खुद खुला। और वो जो काली चीजें थी, कुछ चीख के इधर गया, कुछ चीख के इधर गया। हमारी जिंदगी में अगर चैन चाहिए, राहत चाहिए, और जिंदगी में चैन और राहत की राहें चाहिए, और अनदेखे लुटेरों की लूट से बचना चाहते हैं, अपने सहन को, जहन को, दिल को, सुकून को, नस्लों को बचना और बचाना चाहते हैं अनदेखे लुटेरों की लूट से। ये सारे लफ्ज कहें। हाँ, देखा लुटेरा तो लूट लिया उसने। मैं सामने जा रहा था, ये कबूलियत खाना है जहां हमारा जनरेटर पड़ा है, कंटेनर जनरेटर है। सामने दरवाजे में ना एक बंदा खड़ा था, ऊपर किराएदार रहते थे, उनकी खातून खड़ी थी और बंदा था। मैंने महसूस किया ये बंदा, इसको जादुई दुनिया से कुछ कर रहा है। अच्छा, मैं जिक्र करता आ रहा था, ऐसे फूंक मारा ना, एकदम मुझे ऐसे देखा, एकदम देखा तो माई का दिमाग अपनी वापस पे आ गया। माई चली गई, बाबा जाने लगा। मैं कहा बाबा फकीरां दे गलियां लुट हिप्नोटाइज करके जैसे पैसे निकलवा लेते हैं। वो हिप्नोटाइज नहीं होता, वो जादू होता है। जो कुछ घर में जेवर है ले आ, माई ला के दे देती है। कई वाकयात है, घर में चीज जो पड़ी है ले आ, हम डबल कर देंगे, जेवर डबल कर देंगे, चीजें डबल कर देंगे। ये गठड़ी है, इसको खोलना ना। वाकयात ही वाकयात है। बाबा वारदात कर रहा था, माई खड़ी थी उसके सामने, और माई के हाथ में नोट भी थे। वो कोई मजीद नोटों का मुतालबा कर रहा था। मैं ऐसे जिक्र करता आ रहा था, मैंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें नहीं पढ़ी थी, जिक्र करता आ रहा था। मैंने महसूस किया, मैंने कहा ये सारा घर साफ करके जाएगा। ऐसे मैंने जोर से फूंक मारी ना, एकदम ऐसे पीछे देखा। मैंने बाबा फकीरां दे गले लुट। अच्छा, मैंने कहा सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया, वालेकुम सलाम। मैं कहा जाओ, तेरा सब कुछ ले लिया, चल। पता नहीं यहां से और तूने कितने लोगों को बर्बाद करना था और किया था। मुझसे कहने लगा बाबा जी नहीं, बाबा जी नहीं। मैं कहा जा काम कर। मैं कहा मजीद किया तो फिर और वार कर दूंगा। गया, खाली कर। हम समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं। बहुत अक्लमंद हैं। बाज बंदे बातों में, अकल में बेल्ट बांध के, पुराने कपड़े पहन के, ठीक है, लेकिन एक और रास्ता भी है जहां हमारी खुद अकलें छीन जाती हैं, शऊर छीन जाते हैं, होशें छीन जाती हैं। जैसे मई का अकल और होश छीन चुका था बाबा, वो छीन चुका था। उसने घर का जो कुछ भी था उसको देना था, और जब बाबे ने गुम हो जाना था, मई को शोर करना था। मैं पहना लुटी गई। मैं लुटी गई। कुछ अनदेखी दुनिया है, अनदेखे लुटेरे हैं, जिसका मेरे हबीब कमली वाले ने पूरा इजहार फरमाया, उसका हिफाजत का निजाम दिया। आले रसूल ने वाकयात बताए, असहाबे रसूल ने वाकयात बताए, मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालेहीन ने अपनी जिंदगी के मुशाहिदात बताए। जैसे मैंने आज आपको यह वाकया सुना, शायद पहली दफा सुना है। मैं सामने जा रहा था तो वहां बाबा वारदात कर रहा था। जैसे मैंने मिस्र का सुना है, थूक कैसे फेंकी जोर से, जिसको फेंकते थे उस पर बीमारियां, दुख, टेंशन, मुसीबतें, परेशानी, खुश होते थे। तो क्यों फेंक रहे हो? खुश होते थे। क्यों? इनका काम इंसानियत को अजियत, तकलीफें और दुख देना। इनका काम इंसानियत को अजियतें, तकलीफें और दुख देना। खुश होना। आपने महसूस किया, बाज बंदे होते हैं अजियत देख के खुश होते हैं। किसी का आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिरा, किसी के पीछे से कुर्सी खींच ली, ऐसे किसी पे गर्म पानी फेंक दिया, किसी पे खुश होते हैं, अजियत देके खुश होते हैं। बाज लोग आप महसूस करें, उनको अजियत देकर राहत मिलती है। हज्जाज बिन यूसुफ से पूछा तुझे मजा कब आता है? कहा बंदे को कत्ल करते हुए। कहा पहले उसकी उंगली काटूं, फिर हाथ काटूं, फिर कोहनी काटूं, फिर बाजे काटूं, फिर दूसरी एक उंगली काटूं, दूसरी।
ये मेरा पुरलुत्फ चीज है, एक पल में बंदे को मार दिया, ये कोई बात है? उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल, कुरान कहते हैं वो जानवर नहीं। बकरी जानवर है, नफा देती है, गाय ऊंट जानवर है, नफा देता है, बल हुम अज़ल, उनसे भी बदतर जानवर हैं। वो कुत्ता है, वो काटता है, वो सांप है, वो डसता है, वो बिच्छू है, वो काटता है, डसता है। और बलाएं, अनदेखी दुनिया साइंस ने हमें बताई है, वो है जरासीम। अनदेखी दुनिया, साइंस कहती है एक ये देखी दुनिया, एक अनदेखी दुनिया। साइंस कहती है ये जो अनदेखी दुनिया ना, साइंस कहती है इस अनदेखी दुनिया से आप कैसे महफूज रहेंगे, इसको सोचो। इस अनदेखी दुनिया से कैसे महफूज, ये हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में। बुलेट प्रूफ गाड़ी, बम प्रूफ गाड़ी। मैं कराची में एक साहब के पास जा रहा था, मेहमान था मैं उनका, मुझसे कहने लगे जिस गाड़ी में जा रहे हैं ये बुलेट प्रूफ नहीं है, गोली लगे नहीं, ये बम प्रूफ है। मैंने कहा कोई ऐसी गाड़ी भी है जो नजर प्रूफ हो, जादू प्रूफ हो, जिन्नात प्रूफ हो? वो कहने लगा इसलिए तो आपको बिठाया हुआ है, मुझे कोई ऐसी गाड़ी बता, कोई नजर प्रूफ हो, कोई जादू प्रूफ हो, कोई जिन्नात प्रूफ हो, कोई काली दुनिया, काले लोग, काले रोग प्रूफ हो, मुझे ऐसी गाड़ी दिखा दुनिया में। आपके पास है तो जरूर बताइएगा मुझे, अगर आपके पास है तो मुझे जरूर बताइएगा, कोई ऐसी गाड़ी दिखा। बस बात मेरी आज की खत्म हो गई। वो कहते हैं मजा भी आया तो गल भी खत्म। इसी मौजू पे मैं फिर बयान करूंगा, इसी मौजू पे आइंदा जुमेरात फिर बयान करूंगा। ये मौजू बड़ा ताकतवर है। बीमारियां बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर, हकीम, दवाएं, स्टोर बढ़ रहे और बढ़ेंगे, हद से ज्यादा बढ़े। अच्छा, जराइम, कत्ल गारत कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। और अगर इन चीजों को चाहते हैं, जहां कवानीन है, जहां कवानीन है, जहां निजाम है। मैं उस दिन एक गांव से गुजरा, गांव की हर दुकान फलों वालों के आगे डस्टबिन पड़ी हुई है। मैं कहूँ जिंदाबाद, सफाई ऐसी जबरदस्त। या अल्लाह, कोई ऐसा बादशाह आया है। हम तो फकीर हैं, हर बादशाहों के लिए दुआ करने वाले हैं। तो निजाम कत्ल गारत का, चीजों का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहां असबाब की दुनिया में कानून, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, कानून का एहतराम, कानून की चीजें लाजिम है, वहां गैर मरई, इनविजिबल, ऐसी चीजें जो नजर ना आते हों, उसके लिए भी लाजिम है कि हम उस निजाम को देखें और उस निजाम को सोचें और उस निजाम का हीला करें। मैंने अभी रिसर्च मेरी टीम ने मुझे दी है, मैं दूंगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 से 45, जंग अजीम दोम, हिटलर ने पूरे आमलों और जादूगरों की टीमें बिठाई थी, उसके तावीज निकले हैं और उसने 8000 साल पुरानी गारों से को तावीज उतरवाए हैं जो पत्थरों पे बने हुए। और जब हिटलर मरने लगा, 80% वो उसने सारे तावीज और वो अमलियात का रिकॉर्ड जला दिया था। 20% बाकी रहा है जो मौजूद है और उसमें चंद फीसद मुझे मिला है। हाँ, चंद फीसद मिला। हिटलर जहां फौजें, जहाज, जहां हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम, जापान पे, वहां अमलियात और तावीजात और वजाइफ की दुनिया है, मौजूद है। उस दिन मुझे एक बंदे ने पोस्ट दिखाई, पादरी सारे ट्रंप के इर्द गिर्द बैठे दुआएं कर रहे हैं, पादरी जमा हुए। मुझे अच्छा लगा, ये अमल मुझे अच्छा लगा। दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया में अमन दे। ये दुआओं का अमल मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसी शुबे का आदमी हूं।
میرے دوستو، اللہ والو، یہ پورا نظام ہے، اور اس پورے نظام کے لیے بھی روح کی دنیا انشاءاللہ آئندہ جمعرات بتاؤں گا. ایک موضوع ہے، کیا خیال اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے؟